अस्सलाम वालेकुम। HMDS कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के छठे सालाना इजलास में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जलसे की कार्रवाई शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे सोसाइटी के सदर जनाब मोहम्मद आलम खान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाएं। नायब सदर जनाब डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन साहब से ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं। जनाब रिजवान हैदर साहब खजानची शहनशीन पर तशरीफ लाएं। मजलिस आमिला के रुकन जनाब खादर आलम खान साहब आउट ऑफ कंट्री हैं। हमारे ऑडिटर जनाब अनवर इकबाल साहब की तशरीफ फरमा है और हमारे रवीना कुमार साहब जो हमारे इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मिसेस आर संगीता SCDR ये PS कोऑपरेटिव्स यूनियन के सरबराह हैं, ये भी हमारी मीटिंग में आज तशरीफ फरमा है। और मिसेस मेराजुन्निसा बेगम सीनियर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी हम मौजूद हैं। इन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। I call the meeting to order. सदर साहब की इजाज़त से नोटिस is hereby given that the 6th annual general body meeting of the members of the HMDS Cooperative Credit Society Limited will be held on Sunday, 4th August 2024 at 11:30 AM at Media Plus, 4th floor, Jamia Nizamiya Complex, opposite SBI Gun Foundry, Hyderabad, to transact the following business. Number 1, to consider and adopt and the report of the President and the audited balance sheet, profit and loss account, receipts and payments account, and auditor's report for the year ended 31st March 2024. 2A, to declare the dividend percentage on share capital. B, to appropriate the surplus. 3, to appoint the auditors and fix their remuneration for the year 2024-25. 4, to transact any other business with the permission of the chair, and then vote of thanks. इस मीटिंग्स के कागजात आपको जो दे दिए गए हैं, अगर इसको अडॉप्ट करें। Somebody to propose and yes. Second. Shaukat Ahmed. Mohammed Abdul. Second. It is adopted. इस मीटिंग तक हमारे कुछ मेंबर्स का इंतकाल हुआ है। मैं ख्वाहिश करूंगा डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन साहब से कि वो कंडोलेंस रेजोल्यूशन पेश करें।
हमारे जो अरकान थे लास्ट ईयर वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह नसीब करे। और आप सबसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि 2 मिनट की खामोशी शुक्रिया डराव साहब। और सबसे ज़्यादा हमारे बिल्कुल अजीज़ सज्जाद अली अकबर साहब जो MC मेंबर भी रह चुके हैं। शुक्रिया। जो नाम पढ़े गए हैं उसमें वेंकटराव साहब का भी उन्होंने नाम दिया है। ये हमारे मैनेजर थे सचारामूर्ति साहब के भाई का, कई अरसे तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैनेजर रह चुके हैं। और उनकी वो जब यहाँ से रिज़ाइन किए तो उन्होंने मेंबरशिप ली और काफ़ी अरसे तक हमारे साथ जुड़े रहे। इसके बाद जो हर एक मेंबर का जो उन्होंने जिक्र किया, सज्जाद अली हैदर साहब, आप जानते हैं कि वो कई साल से सोसाइटी से वाबस्ता थे, ट्रेजरर थे, पुरानी सोसाइटी में भी थे। और उनकी खिदमत को भी हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा जनाब मोहम्मद आलम खान साहब से कि वो प्रेसिडेंट रिपोर्ट पेश करें। Dear members, it's a pleasure to welcome you all to the 6th Annual General Meeting of our Society. Our membership stands at 384 with addition of 21 members and 19 members closed their accounts. The Managing Committee and Loan Committee meetings were held periodically to transact business and approve loan applications. The loan disbursed this year has been more than Rs 5.12 crores, which is a reduction of about 1% over last year. Members' cumulative deposits has increased by about 5.4% to Rs 9.08 crores. The Managing Committee has decided to maintain the dividend on the share capital at 15%. The return on CD amount is to be disbursed at 9.5%, amounting to Rs 81,48,022, which will be deposited to the members' individual CD account, subject to approval by the members at the AGM. Once again, our society has achieved a recovery of 100%, payments of 2% rebate. Payment of 2% rebate on finance charges for advance and prompt repayment of loans amounted to Rs 4,03,046. We have started the upgradation of our office computer software and systems to serve the needs of the members in a better way. In acknowledgement of the services of our office assistant, Mr. K. Ramu, who has completed 25 years of service, I request our honorary secretary to reward him suitably. The committee recommends Messrs. Iqbal and Associates to be reappointed as statutory auditors for the ensuing year. I would like to thank our tax consultants, Messrs. Venugopal and Shinoy, internal auditors, Messrs. Ramana Kumar and Associates, statutory auditors, Messrs. Iqbal and Associates, legal advisor, Mr. P. Badri Premnath, and all you members for the continued support and understanding. Thank you. Thank you. To conduct members' education program
by department educators for renewal of registration of the society. I request Mrs. Sangeeta to please address the gathering. Cooperative greetings to everyone over here, because I am telling you cooperative because it's a big cooperative society where I have heard just now about the report and all. So you have come for the general body meeting, is it right? Yes. So just a few words. Cooperatives, what are cooperatives? Group of persons who voluntarily unite themselves to achieve the objectives, isn't it? So here main objective is economic objective, because you are availing loans, is it not? So a biggest a good thing about a cooperative society is you get loans, hassle-free loans, is it not? Did you observe that? Because if you approach any other society, no, not a cooperative society or a bank or any financial institution, आपको कितने पेपर साइन करने पड़ते हैं? Am I right? इसके बाद भी आना नहीं आना वो उनका है, is it not? मर्जी बोलते हैं ना? या वेट भी करना पड़ता, और कितने क्या बोलते signatures? Have you observed? Because I am also a part of that. yeah, sufferer. yeah, कितने दिन लेते, और क्या बोलते, so many people come to every time like as if you have some CBI people, like how they घुसते ने अंदर, वैसा घुसते ने. So that is the क्या बोलते वो अच्छी खासे क्या बोलते cooperative society का, that is the sweetness of cooperative society, where everyone who is eligible, the members, they get the loans or any other thing, is it not? So general body, why general body meetings we have to conduct? General body meetings is a part of the cooperative act. You know, the society runs on cooperative act. एक law के हिसाब से चलता है cooperative society, is it not? So what is that law? 1964 Telangana Cooperative Societies Act 1964. This society has to work in accordance with the provisions of the act. You have to know it, because there is a big history, because 64 Act के हिसाब से ही चलना पड़ता है any society, cooperative society. So here I am telling you, then who has to run the act, like who has to implement the act? There is a commissioner for it. There is a commissioner for cooperation who implements the Cooperative Societies Act. So under the commissioner, all the district cooperative society officers are there. Under him or her, the registrar or whoever as a commissioner, we have every district has a district cooperative society officer who runs who implements the act. Is it not? So here, again I introduce myself. I am Sangeeta. I am joint registrar from cooperative department. You know, there is a department to implement the cooperative act. So I have come from that department. Now, why I am talking more emphasis on the act? क्यों मैं बार-बार act बोले तो? Because without act, the society cannot run. Every society has to follow the act. So what is that act? I was just now saying Telangana Cooperative Societies Act, which has 134 sections and 75 rules. How many sections are? 134 sections, 75 rules. So पूरे जो sections है पूरा, they have to work in accordance with that. One of the section I am telling you is general body meetings. 30, section 30, जनरल बॉडी मीटिंग्स करना पड़ता है एवरी ईयर कंपलसरी 64 एक्ट के तहत 2 जनरल बॉडीज आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट 2 जनरल बॉडीज every 6 months. Now you know March and September you have to conduct the general body meetings. Now why general body meetings? What are the powers of the general body? What is the provisions in the act where members responsibilities are also there, is it not? So one of the major responsibility of a member is attending the general body meeting, is it not? So general body meeting 2 बार
continuous 2 times if you don't attend general body meeting, a member is liable for punishment. What is that punishment? The committee members, after issuing a notice, they can remove you from the society. So, see how much powerful, is it not, the general bodies? Why this provision is there? Attendance is very important for a member, because here only, you know, अभी आपने देखा है, the committee members, Mohammed Alam Khan or Rizwan Haidar, all the committee members who are sitting dignitaries on the dais, they have read some annual report, isn't it? So for each and everything you have given yes बोल के बोले आप, ने? So that is the, you see, the power of the members of the society. Because if you don't agree, the majority doesn't agree, they will not move that resolution. So here the resolutions are passed on the basis of the accordance given by the members of the society. So not only this, any new member, क्या है power general body का, any new member is admitted or any member is removed, that things have to be placed before you, before the general body. Loans, whatever the new schemes, the annual plans, they have to be also approved by you. And any committee members also, any changes in the committee members, that power is also given to you for every 5 years. What is that power? Can you tell me? Can you tell me what is that power? Somebody just Election. Yes, very good. Elections power is given to you. Is it not? For a committee members to come or not, it is in your purview. Is it not? Through a elections, because elections for every 5 years in the Telangana State Cooperative Societies Act. So that is the power of the general. I am just talking about powers of the general body members. And you know, they have read loans, 100% loan recovery is there. Very good. So that means I have not seen anywhere like, because just a beautiful thing of the societies. Last time also I attended, I might have connected with you, some might have seen me also. Here, loans are big. I have seen that. But recovery is 100%. That is the sweetness of the society. Not only that, the credit goes to the committee members. Like when you repose confidence in the society, in the committees only, your loan recovery is nice, isn't it? Your recovery is nice because when you repose confidence in the society members, your loan recovery is 100%. So hats off to everyone who have availed the loan, and there are no defaulters. Is it not? So if there are defaulters, what is the thing or what is the provision the society can take up? They can go for the issue of notices. There are so many notices that will come to you if you are a defaulter. Then even if you are a defaulter, continuous defaulter, and you may not be eligible for election also. If you are a defaulter, you may not be eligible for a election also. So, and even if you are not, if your member is there, you have to avail loan. Take something from the society. You just become a member and you don't avail any services, that also will lead to removal of your membership. So this is also there. You have to avail something, you have to be with the society. Some or the other form. Attend the meetings, or you have to become, like you become member and you forget the society. Just now we were shocked too. I was just gazing at you. You were shocked to listen. There are so many provisions. So here with small words, and here because they have given you only few some 10 or 15. If any doubts are there, you can raise. I will answer your doubts. Okay? Thanks everyone. Just you are so aptly, you are just listening to me. So, you have any doubts? Just over 10 minutes doubts I will clear, and then we will wind up. Nobody has This any cooperative society only. Nobody has any doubt.
Oh, very good. Society has been functioning. Yeah. So therefore there are no doubt. Yes, yes. Actually, this society last time when I came and when Balraj Garu has approached me, I didn't know that this society existed. I am the district in charge Hyderabad, so by preparing that, you had to add this society also. That means, why it has not come into my knowledge? You tell me, sir. Can you give me, throw me light, or anyone here? Because 100% recovery is there. Yeah. No litigations. No litigations. Very good. And sir, No complaints. no complaints. Yeah. We come to know or we know the society by complaints only. Everybody sincere, honest member. Yeah, And sir. gentlemen like Iftikhar sir is the secretary. Yeah, so many committee members are Extraordinary. dedicated. So that is why, because Honorary secretary for years together he has been working daily, Yeah. here for 4 to 5 hours. Yes. Who will contribute such type of the abundant time there for the organization? Yes. And give good dividends. yeah, And 15%. Just dividend- now I heard that 15%. And that is there in the act. Deputy Minimum dividend. 15% is there in the act. We have some section 45 where you have disposal of profits. So 15% is the minimum dividend you have to give, it is there. So you are following the act then. I think we will get the loan here within 24 hours, Yeah. nowhere in any bank. Yes, yes. So loan आया अच्छा है बस recovery भी है अच्छा है. Okay sir. And what else? You no questions. So no, just now I was telling no why I didn't know the society, because you have said no complaint, because we get lot of complaints of a society. Housing हो या employee society हो कहीं पर भी हो, we get, and that society is known then. We get scared, like we have to go, then we have inquiry. We department people come to the society for inquiry under section 51. Then under section 52 we have inspection of books, of accounts. So our people are cool here. Our department people, Mehraj and the two people who are saying is from there, from our One department. request, madam, please you send a letter of appreciation for the organization. On behalf of the No, we will send 8A certificate. in the secretary. No, I will Letter of just, appreciation on behalf of your Sir, department. I have come here with a purpose, sir. I have come here with a purpose. Just now, sir has said 8A or renewal of registration. I'll just throw some light on that. Actually, it is compulsory because I told you you have to follow the act. 8 है ये बोल के एक सेक्शन आया है recently because after bifurcation of the Andhra Pradesh and Telangana, so there was a need to also bring revisions or provisions changes in the act also. So major change that has been brought in the act is 8A बोल के एक introduce करें इसमें act में. So because by 8 section 8 you got a registration certificate. You can see the registration certificate where under section 8 our commissioner or district cooperative officer has given you the certificate. लेकिन 8A क्यों आया? इसमें क्या है बोलते हैं renewal of registration करना है. Every society has to get its society renewed. Renewal जैसा अपन ये करते हैं ना अपना क्या बोलते हैं bikes and all that. Yeah. Everywhere there is renewal. No, here also for society also there is renewal. Every year. No, every 5 years. Every 5 years. Every 5 years. Every 5 years. Okay. So one of the then renewal करना है तो फिर हमारे लोग कौन district cooperative officer will give a certificate. Simply they don't give a certificate. You have to comply with the provisions of the act. What are the compliance? First is you have to have audit of the accounts of society. वो हो गया, audit हो गया. So audit should be there. Second, election should be there. Elected committee रहना है. So elections also, I suppose it is over. Elected elections. So you have to submit audit report. You have to submit election report. Third, the society is running in accordance with the act. बोल के 2 lines लिख के देना. Some like 2 lines you have to write in. Fourth is certification of the society. Fourth is very important. All the members of the society should have education and training. Should get education and training, member education and training, and that certificate has to be issued that they got the training by the Telangana State Cooperative Union. You know where is Telangana State Cooperative Union?
just beside Nizam College. और लेपाक्षी और निजाम कॉलेज है ना, उसके बीच में है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन, which is a wing education wing of registrar of cooperative societies. A cooperative department का education and training wing है. So from that wing I have come. The purpose I told you, to educate you. So on this week, because all the members have attended my education and training, and that certificate will be issued by the MD of the Telangana State Cooperative Union. So ये 3 certificates लेके आप क्या करना, DC office को जाना है, committee members. Then they will get the what? You will get the under 18 renewal of registration certificate. So which is more difficult? Easy is accounts हो जाता है every year you get audit which one sir? Third and fourth item. All the members should get educated. इधर क्या है मेरा? All the members, 100% of the members should get educated. So today I've come for that. Maybe people might come even after I go. So better go for renewal of registration. You submit the proposals to the DC because we can't. You are running in accordance with the act. ये भी एक होने दो. You have to get the renewal. Okay, sir. Thanks. And I don't think you have any doubts because no inquiry, no inspection. Everything is perfect. I feel. I think because on the basis of a report here, whatever is placed here, and whatever sir has read out, I think 100%. But if you have any doubts, you can approach me. Committee members can approach me. Okay, sir. Thanks everyone. बहुत क्या बोलते पेशेंस के साथ मेरा सुन रहे आप लोग. Thank you so much. मेंबर का बने क्या सर? लोन के लिए सर? Definitely because hassle free loan है ना. There are so many big societies. Every क्या बोलते BDL जाओ आप IDPL जाओ कहीं पर भी जाओ every society is great society. So that is the beauty I told you अपना act. इतना अच्छा सोसाइटी तो नहीं हूँ मैं. Because that is why I told you to visit so many societies. Visit there are so many housing societies है ना बड़े-बड़े. फिल्म नगर में है. Film Nagar Cooperatives, Jubilee is cooperative offices. We have several societies. Thank you so much. Sir? इसलिए मैं बोले ना वहाँ से झगड़े होते हैं. Great society में नहीं. I'm a member of the Film Nagar Housing Society also. You have seen. That is why I'm telling you inquiry नहीं inspection नहीं ना. अच्छा चल रहा. Thank you, ma'am. Thank you for giving me the opportunity. I request now Mr. Rizwan Haider to. Sir, I will take you. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. To present the treasurer's report. The annual report, including all the audited accounts and auditor's report, 21 days पहले आप सबको जो है भेज दी गई थी, तो यकीनन सब लोग इससे पूरा देख चुके होंगे. फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट होते हैं इसमें बताता हूँ आपको. ये मेंबर डिपॉजिट्स जो है लास्ट ईयर से 64 लाख का इंक्रीज हुआ है. लोन्स जो है 39 लाख इंक्रीज हुए हैं, और जो फाइनेंस चार्जेस हम कलेक्ट करते हैं लोन्स पे वो 4.28 लाख का इंक्रीज है. रिबेट भी जो दिए हैं ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट वो जो है 2.25 लाख इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह ये है कि सारे मेंबर्स जो लोन लिए हैं वो टाइम पर रीपे कर रहे हैं. और सीडी जो है 1.62 लाख का इंक्रीज है. तो नेट जो इनकम इंक्रीज हुई है पिछले साल से वो 4.38 लाख है. और अगर आप एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो
सैलरीज को छोड़ के दूसरी कोई भी हेड ऑफ अकाउंट में इंक्रीज नहीं है, बल्कि बाज़ जगहों पे तो पिछले साल से और कम खर्चा बताएं। तो इसकी वजह से ही सेम 9.5% का डिविडेंड सीडी पे रिटर्न जो हम लोग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल हियर, वो इसकी वजह से जो है तो अब इसके अकाउंट्स के ताल्लुक से अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ इसके अंदर डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, या नहीं तो फिर कोई प्रपोज या सेकंड करेगा तो ये अकाउंट जो है अडॉप्ट हो जाएगा। मेंबर्स कितने हैं सर? 384. 384। ये कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो पास करना है यहाँ पर। पहला है सीडी पे जो 9.5% रिटर्न हम देना चाह रहे हैं, जो 81,48,022 अमाउंट हो रहा है। तो I, Rizwan Haider, on behalf of the Managing Committee, hereby propose to declare a return on CD at 9.5% on the CD accounts as on 31st March 2024, amounting to rupees 81,48,022, which shall be paid to the members individually. Proposed by Zishan Haider and seconded by Mr. Abdul Hussain. Resolved that a return on CD at 9.5% be and is hereby declared on the balances of the CD accounts as on 31st March 2024, amounting to rupees 81,48,022. The same shall be credited to the members' accounts individually. दूसरा रेजोल्यूशन है जो डिविडेंड है शेयर कैपिटल पे देने का, जैसे अभी वो कोऑपरेटिव के जो ऑफिशियल थे उन्होंने बताया, तो 15% मिनिमम देना है, तो वही हम लोग दे रहे हैं। सो आई, रिजवान हैदर, ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी hereby propose to declare a dividend of 15% on the share capital as on 31st March 2024, amounting to rupees 57,600. which shall be credited to the members' bank account directly by online RTGS or NEFT. तो ये अगर propose और second कर रहे हैं Resolved that a dividend of 15% be and is hereby declared on the balances of the share capital as on 31st March 2024, amounting to rupees 57,600. The same shall be credited to the members' account through online RTGS or NEFT. अभी जो ट्रेजरर साहब ने रिपोर्ट पेश की उसमें मैं वॉच कर रहा था कि सीडी का जो बताया उन्होंने रिटर्न 9 पॉइंट समथिंग, तो वो मेंबर से मालूम करना चाह रहे थे कि प्रपोज करेगा सेकंड को। मैं समझ रहा था कि इतना अच्छा डिविडेंड है तो सभी हाथ उठा के कहिए कि हम प्रपोज करना चाहते हैं। पिछले साल 9.8 था ना, अब 9.5 कर दिया। पहले 9.5 8 था, अभी 9.5 करते हाथ में कम हो गए। इसका जवाब आप ये सवाल आप कर रहे हो। परसेंटेज कम हो गया लेकिन क्वांटम ऑफ रिटर्न जो है बढ़ गया। Yeah, but we look at percentage only. क्यों कम हो गया बता दें। लोन्स जो है कम लिए मेंबर्स, तो उस पर इनकम आपको कम आई, इसलिए हाथा कम हो गए। तो लोन डबल करो ना। तो लेने के लिए एप्लीकेशन दीजिए करनी। Now I request Mr. Muhammad Alam Khan to propose the
contribution of students. I, Muhammad Alam Khan, propose on behalf of the Managing Committee to transfer rupees 5,192 to reserve for doubtful debts, 5% from the surplus to reserve for the doubtful debts. Need somebody to second me? Resolve that a sum of rupees 5,192 be and is hereby transferred to reserve for the doubtful debts, 5% from the surplus. General Reserve. I, Muhammad Alam Khan, propose on behalf of the Managing Committee to transfer rupees 25,962 to General Reserve, 25% from the surplus remaining after disbursement of dividends for the year 2023-24. Need somebody to second? Resolve that a sum of rupees 25,962 be and is hereby transferred to General Reserve, 25% from the surplus remaining after disbursement of dividends for the year 2023-24. Thank you. I, Makhdoom Mahiuddin, on behalf of the Managing Committee, shall propose the Educational Fund Resolution, seconded by resolved that a sum of rupees 5,192 be and are hereby transferred to Telangana State Cooperative Union Education Fund, 5% from the surplus. I, Makhdoom Mahiuddin, on behalf of the Managing Committee, shall present the statutory auditor's resolution, seconded by I, Makhdoom Mahiuddin, on behalf of the Managing Committee, hereby propose the appointment of Mrs. Iqbal and Associate, Chartered Accountant, Hyderabad, to act as the statutory auditors of the society on the remuneration of 50,000 per annum for the year 2024-25. Resolved that Mr. Iqbal and Associate, Chartered Accountant, Hyderabad, to hereby appoint as statutory auditors of the society for the year 2024-25 on yearly remuneration of rupees 50,000. अभी जो मैडम बात कर रही थी उसमें 2-4 पॉइंट्स मेरे को सुझाई दिए। एक तो ये कि सोसाइटी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की जितनी भी तरक्की हो रही है वो सब मैं तो सब पूरा उसका सहरा आप पूरे अराकीन की तरफ मैं पेश करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग वक्त पर सीढ़ी नहीं अदा करेंगे या लोन्स के इंस्टॉलमेंट्स अगर वक्त पे नहीं देंगे तो हम हरगिज़ कभी अपनी सोसाइटी को 100% फुली पेड बोल के नहीं बता सकते। ये सब आप लोगों की वजह से मैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे अराकीन की तरफ देता हूँ। दूसरी बात अभी मेंबरशिप के बारे में हो रही थी, ये सवाल आपके दिमाग में भी उभरा होगा कि मेंबरशिप हमारे पास क्यों कम है, क्यों नहीं बढ़ती। तो उसको ये जानिए कि ये सोसाइटी एक ख़ानदान है
मैं इसको हर एक ख़ानदान है, अपना ख़ानदान समझता हूँ। और आप हरगिज़ अपने ख़ानदान में कोई ऐसे शख्स को के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जो शर्मिंदगी करेगा या फसाद फैलाएगा या लड़ेगा। बताइए, कोई है? कोई नहीं चाहेगा। तो आप ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे ना जो आपके हमख्याल हैं और जो आपके घर के डिसिप्लिन वगैरह को समझते हैं, जो मोहब्बत से रहते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो यही पूरा जो इस सोसाइटी पर आता है, क्योंकि हमने 1984 से जब से भी सोसाइटी शुरू की थी, मैं हर वक्त यही जनरल बॉडी में कहता हूँ कि ये एक हमारा ख़ानदान है और हम उनको उसका ख़ानदान में वैसे ही रहना चाहिए जो एक अच्छे ख़ानदान की अलामत होती है। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे मेंबर्स आए, लेकिन अच्छे मेंबर्स, अब अच्छे मेंबर्स की तारीफ हर मेंबर कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा अपने दोस्तों में से, रिश्तेदार में से एक दोनों, तो कोई तो मेंबरशिप पड़ जाती है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने कि मोइन भाई को लाया, शौकत हयात को लाया। नहीं वो एग्जाम्पल कर दीजिए, आपका बात मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। गारंटी बिल्कुल सही है। मैं वही कहता हूँ कि जो मेंबर किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है वो ये समझे कि वो अपने घर में उस आदमी की एंट्री को पसंद करता है। बस इससे बढ़ के मैं नहीं बोलूँगा, आप समझदार। तो मैं हर बात यही कहता हूँ कि आप लाइए, लेकिन अगर वो मेंबर को ठीक नहीं रहा तो फिर उसकी जिम्मेदारी, तो अब आप मुझे बोलिए कि नहीं वो बना दिया, अब आप देख लीजिए क्या करना है। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जहाँ पर किसी मेंबर को हमने रिमूव किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी बात से बार बार इस पर स्ट्रेस करता हूँ कि आप मेंबर्स को लाइए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी आप कबूल कीजिए, उसको आप परख कर लाइए। आप घर में अपनी बहू को लाते हैं, क्या परख कर नहीं लाते? देख समझ के नहीं लाते? उनका ख़ानदान नस्ब असर नस्ब नहीं देखते? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ख़ानदान है तो आप उसमें जो भी आते हैं आप देख समझ के लाइए और मोस्ट वेलकम है। इसीलिए हम सेलेक्टिव हैं, जो हमारा सेलेक्टिव रहने का वही, वरना अगर हम ओपन कर दें तो आप मैं यकीन मानिए एक लंबी लाइन लग जाएगी। और ये बिल्कुल सही है, वो बात लोग कहते हैं कि आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्यों रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी वजह। और आप और एक बात देखिए, जब मेंबरशिप लेता है तो हकदार हो जाता है हर फैसिलिटीज़ के लिए, ये भी ज़रूरी है। मान यहाँ हमारे पास किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या आप मानते होंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते। तो जब कोई मेंबर आ जाता है तो फिर वो हकदार होता है लोन लेने के, तो उसको रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स नहीं फॉलो करता है, तोड़ना चाहता है, तो वो फिर शर्मिंदगी हुई। वो फिर आप सोचिए, वो ख़ानदान के जहन में रखिए कॉन्सेप्ट, और फिर आप डिसाइड कीजिए, ऑल आर वेलकम। लेकिन ये है कि उसका एक्सेप्टेंस जो रहेगा वो कमेटी के ऊपर रहेगा, और कमेटी का क्या मंशा है वो आपको मैं बता दूँ। आप लोग मेरी बात पे करने से ना। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी जो है हर वक्त तरक्की कर रही है। और अभी जो सवाल हुआ था कि कुछ परसेंटेज ज़रा सा कम हुआ है, वो इसी बात से हुआ कि लोन्स जो है थोड़े कम हो गए बनिस्बत गुज़िश्ता सालों की। तो लोन्स क्यों कम हुए हैं, या तो हमारे मेंबरों को लोन्स की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है नहीं मालूम। तो मगर हमारी तरफ से तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। देखिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जब से दखल हुआ, बैठी है मोहतरमा, वो उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम पर आयद किए। जो हमारी हैदराबाद म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी थी जो अलग रजिस्ट्रेशन पे करे थे, आप जानते हैं उसमें बहुत सारे मेंबर्स या हैदराबाद म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी मेंबर हैं। वो जानते हैं कि उस वक्त कितनी फ़राग दिली से हम लोग काम करते थे। लेकिन जब से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में आया, मैं कोई बात गलत नहीं बोल रहा जो अपनी बात बता रहा हूँ, तो उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और हमको फॉलो करना है। तो अगर आपको कोई चीज़ जो है उसमें पसंद नहीं आती तो समझिए कि वो हमारी मजबूरी है, हमारी खुशी नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम उनके रेस्ट्रिक्शंस के रूल्स के अंडर काम करना पड़ता है। और हम वक्त ब वक्त जो है जैसे जैसे हमारे मेंबर्स की ज़रूरत होती है हम उनको लिखते हैं और उनसे और इंक्रीज़ करने के वास्ते हम मांगते हैं, और वो जैसा भी है वो जब भी देते हैं हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों का कोऑपरेशन जैसा हर साल होता है, तो इसी तरीके से मैं आपके कोऑपरेशन के लिए ख्वाहिश करता हूँ।
हमारे दरमियान में जो है ये बात और भी है कि मैं हर यही कहता हूँ और अभी भी यही कर रहा हूँ कि सोसाइटी जो रन करती है मैनेजिंग कमेटी के अफराद के अलावा जो बैकबोन सोसाइटी के वो हमारे स्टाफ हैं। आप देखे होंगे कि ये स्टाफ हमारे पास साल से काम कर रहा है। आप हर साल किसी न किसी को ये देखते हैं कि कोई 25 साल कंप्लीट किया है, कोई 30 साल कंप्लीट किया है। और ये क्यों होता है? ये उनके वफादारी है जो सोसाइटी के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे से जुड़े हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारे को साथ दी। छोटी बात नहीं है आज के ज़माने में जो है। देखिए हमारे पास जो काम कर रहे हैं और ऐसी मोहब्बत से रहते हैं, ये भी एक ख़ानदान के फ़र्द के वैसे काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी सोसाइटी का कोई भी जो स्टाफ जो है कमर्शियल बेसिस पे काम करता हूँ। ये जब भी चाहते हैं वो ठहर जाते हैं, जब हम बुलाते आते हैं, बराबर अपनी दिलचस्पी से और बहुत मेहनत से, जफाकशी से ये लोग काम करते हैं। मैं फिर उनका सबका शुक्र अदा करता हूँ इस मौके पर आपके सामने, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। और आज इसी सिलसिले में हमारे एक और एक स्टाफ मेंबर है रामू, जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं अनइंटरप्टेड। तो आप सबकी तरफ से उनको हम तोहफा देना चाहते हैं। राम की सदर साहब को तोहफा पेश करें। मुबारक रहो। सबकी तरफ से मुबारकबाद नहीं देता हूँ। ये तो हमारा एजेंडा, तो जो मैनेजिंग कमेटी की तरफ से जो रेजोल्यूशन वगैरह हुए हैं वो तो पेश कर दिए गए हैं। अब ये आप पर है कि आप लोगों में से कोई सजेशन देना चाहता है या कोई रिमार्क्स करना चाहता है या कोई सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहता है तो मुख्तसर अल्फाज में उसको पेश कर सकते हैं। ये सब चलते रहिए, बराबर करते रहिए। उसका भी कोई सेशन रखेंगे क्या अपन सोसाइटी की तरफ से? एक प्रपोज नहीं, आप बहुत अच्छी बात बोले। इसके आगे फिर और एक बात बोलता हूँ मैं कि हमारी सोसाइटी में कितने मेंबर्स हैं? 384। आज कितने आए? जो रूल फॉलो कर रहे हैं देखिए ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ और इसके लिए हमको, मैं माफ़ी चाहते हुए बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत समझिए, हर एक को मुतादिद बार मैसेजेस, टेलीफोन्स करके याद दिला के आने के लिए कहा जाता है। जब जनरल बॉडी में 384 में इतने मेंबर्स आते हैं तो आप अलग सेशन रखकर आप बुलाए तो कितने आएंगे? ये मेरा जॉब है। मगर ये सेशन मैडम बोले कि ट्रेनिंग सेशन हो गया, सर्टिफिकेट्स मंगा लेंगे। सर्टिफिकेट भी तो सबमिट करना है ना सब लेवल के लिए। कोई अगर कुछ बात करना चाहता है? रज़ाक सर, आइए। चलिए बैठिए। रज़ाक साहब हैं, बहुत एक रिनाउंड कंपनी के मालिक हैं यहाँ पर और बहुत ही पुराने मेंबर हैं। ये सोसाइटी के ऊंच नीच से खूब वाकिफ हैं, रग रग से वाकिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर वल्ताब समझे के मेडिकल का, जिन्हें मैं अल्लाह का PhD हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं, पूरे मेंबर हैं इसके। पहला बेटा है सीनियर सिविल जज है, वो भी मेंबर है, लेकिन जब जज नहीं था उन्हें स्टूडेंट था, जब से मेंबर है। और मेंबर बनने के बाद जज हो। सोसाइटी की मुख्तसर अल्फाज बोले वो मैं बताना चाह रहा था, दिल में है लेकिन नहीं बता सकता। और हकीकत ये है कि जब बच्चा यहाँ से इंजीनियरिंग करके अमेरिका गया MS करने के लिए, तो मैंने आपसे लोन लिया था। वो काम है कि किससे बोलते बैठो। फिर मेरी एक बेटी है फरीन कौसर, ऑन ड्यूटी सीनियर सिविल जज है, आज ट्रेनिंग में है, वरना वो पक्का आती थी, लेकिन वो सिकंदराबाद में जुडिशरी एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग है, आज कल थी और आज भी है। और एक बच्ची है तहसीन कौसर,
उन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, वो भी मेंबर है। वो मेंबरशिप कैंसिल करने आई थी, सब हो गया। फिर साहब बोले ऐसा कैसा जा सकते, तो फिर वो विड्रॉ कर ली। मेंबर है, एक्टिव मेंबर है। बात रखी जी, हमारे गरीब की बात रखी की बात नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पे। बोले रे पापा ठीक है। पूरे बच्चे मेंबर हैं माशाल्लाह। मैं भी मेंबर हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा भी मैडम का नाम भूल रहा हूँ, संगीता मैडम जो बताए, बहुत अच्छी बात बताए। आपको लोन लेने के लिए बैंकों को फिरना पड़ता है। प्राइवेट में तो आप जा नहीं सकते। आजकल एक मार्केटिंग होती है बजाज फाइनेंस की, वो लोग जो है पहले बोलते 0% पे देंगे, उसके बाद खर्चे इतने लगाते हैं, उन्होंने 5 साल का पूरे वसूल कर लेते। अब रहा सवाल, बैंक को जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। केनरा बैंक है, पहले सिंडिकेट बैंक था, अभी केनरा बैंक हो गया है। इतने एप्लीकेशंस लेते हैं, इतने एप्लीकेशन लेते हैं, मैडम जो बताए बहुत ज़्यादा पेपर्स लेते हैं और इतने साइन करना पड़ता है। और ये जो पेपर है इसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से बैठ के पढ़ सकते हैं। उनके पेपर में ऐसा आईना लगा के यूँ देखने से भी नहीं पढ़ सकते आप, वो कोर्ट में पढ़ा जाता, तो दफड़ा हो गया था। तो लिहाजा इतने साइन कर सकते हैं। मैं गिना तो नहीं, लेकिन ऐसा हाथ में पकड़ के देखा था मैं, 100 किलो तो थी। उतने पेपर साइन करना पड़ता है। सब होने के बाद मैनेजर इतना होशियार होता है, वो क्या बोलता अभी हो जाएगा, मैं जोनल ऑफिस भेजा, रीजनल ऑफिस भेजा, वहाँ भेजा, हेड ऑफिस भेजा, सब भेजा, बोल के टला के उसका ट्रांसफर का टाइम आए तक टलाते रहता। उसका बोलता साहब मेरा ट्रांसफर होने वाला है ना, अब नए साहब आया पति करा लीजिए। अब फिर नए साहब फिर शुरू से, और देते भी नहीं। मैं तो नहीं देखा किसी को देते हुए। अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं कि अभी एक केस चल रहा है बैंक का, चेवड़ला के बैंक का है। सीबीआई केस हो गया, 18 लोग उसमें अक्यूज हो गए। वो केस मैं देख रहा हूँ। तो क्या है, मैनेजर साहब मिल के करोड़ों रुपए का लोन निकाल लिए, और वो जो लोन लेने वाले बच्चे हैं ऐसे ही सब मिले हुए हैं। अच्छा ये अकाउंट है आपका, लोन लेके क्या किया, वही नाम का अकाउंट खोल के उसमें डाला, उसमें से उन्हें निकाल लिया, ये वैसे ही है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीबीआई भी परेशान है, आखिर दिया कैसा, लिया कैसा, ये है कैसा। खैर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब मैं मकसद पे आ रहा हूँ कि यहाँ पर सफ़ेद कागज पे 2 लाइन लिख के, क्या बोलते तरह मिश्रा लिखे तो गजल बना देते, वैसा आप जो है लिख के दिए तो लोन सैंक्शन करते। आपसे एक लफ्ज नहीं पूछते आप कौन है, क्या है, किधर है, क्योंकि आपके 2 गारंटर हैं। अभी इफ्तिखार साहब जो है बताए साहब को कि आप जो मेंबर लाएंगे उनकी गारंटी आपकी होगी। भाई अच्छे लोग ही आना है, ये मकसद से नहीं आना मैं लोन लेके कुछ करूँगा। आप लोन लेकर अच्छा बिजनेस करें, आपको 15% यहाँ ईयरली मिलता है, आप 50% कमा सकते हैं बिजनेस में, मुझे तजुर्बा है इसका। तो लोन आप लीजिए। मैं अब जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेके आप अपना एसेट बढ़ाइए, आप अपने आमदनी को बढ़ाइए। दिन ब दिन आपकी लाइफ लग्जरी होते जा रही। बच्चे छोटे हो जा रहे, मुंह में ज़बान नहीं है, छोटे हैं। जब मुंह में ज़बान आ जाएगी तो फरमाइश करेंगे, वो होना, ये होना, ऐसा होना, वैसा होना, उनका बच्चा वहाँ गया, इनका बच्चा यहाँ गया। वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, वहाँ नौकरी करने के लिए मत भेजिए। यहीं बहुत कुछ है। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं, मिट्टी को पकड़ के पैसा बना सकते हैं। आप में वो गट्स आ जाना चाहिए। तो वो करने के लिए पैसा चाहिए, तो HMDS सोसाइटी है ना देने के लिए। तो बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि अब एक रिक्वेस्ट आपसे है, जनाब सदर साहब से भी है, इजाज़त हो तो बोलूँ? बिल्कुल।
आप लोग जो लिमिट है करते करते आए हैं, 50 लाख तक आ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा मशवरा है कि आप 1 करोड़ का सैंक्शन करा दीजिए। मैडम चले गए, अभी और एक है अच्छा, मैडम भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जी। क्या नाम है मैडम? पूछ मेराज। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो गई। तो आप इस बात का रिकमेंड करिए, अगर 1 करोड़ की लिमिट लगा दिए, सब 1 करोड़ लेने तो नहीं आएंगे ना, हिम्मत रहेगी। अब फर्ज कीजिए मुझे 50 लाख मिल सकते हैं, अरे वो फला में मैं लगाऊंगा, इसमें ऐसा करूंगा। अब जैसा मेरे 2 बिल्डिंग बन रहे हैं, कहीं अब पैसा नहीं, एक बिल्डिंग में पैसा नहीं है मेरे पास, और बिल्कुल बिल्डिंग तैयार है, सिर्फ बाथरूम वगैरह बनते ही किराए पे देना है। मेरे को कम से कम 6-7 लाख रुपए किराया आता, वो पैसा नहीं है। फिर अब लोन के लिए जाना, लोन अप्लाई करें तो 50 से बढ़ के मिलता नहीं। अगर लिमिट है तो मैं 75 भी ले सकता हूँ, 80 भी ले सकता हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसा किराया था, किराया अटैच कर देता हूँ, इंस्टॉलमेंट भरे जाती। बहरहाल कोशिश करें कि पैसा लें, सही इस्तेमाल करें, दावता नहीं करना ये वो खर्चे नहीं करना, टूर पे नहीं जाना, कुछ नहीं, ओनली बिजनेस, प्योर बिजनेस। पैसा जो ले रहे हैं जिस नीयत से, वही नीयत से काम भी करना, पैसा कमाना, ताकि आपके लोगों को, देखने वालों को, दोस्तों को, अपने बच्चों को इस बात की फिक्र होना कि बाप कितना मेहनत कर रहा है, वो लोग उसको आगे बढ़ाना है। बस इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कोशिश करें, ये मत समझे हर आदमी 1 करोड़ मांगने आएगा, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दुआ तो सबकी रहती है, वो तो जाहिर नहीं होती, एक रूहानी चीज़ है। अब रहा माली तौर पे लोग मुस्तहकम हो जाएंगे। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को कोशिश करें, गौर करें, आपकी मीटिंग में रखें और रिकमेंड करें। 100% लोन जो रिकवरी है जी, इसकी वजह से इफ्तिखार भाई जो देखते हैं, आपका पहले बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं पूरा आपके इनकम टैक्स रिटर्न पेपर से, और अगर आपकी इनकम अगर उतनी है और आप देने की आप काबिल हैं EMIs, तो हम देते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। अगर वैसा नहीं है तो आदमी लेगा भी नहीं। अगर EMIs अगर आपके बराबर नहीं है तभी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हम आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं, देखिए हमको जो है सोसाइटी का ख्याल करना चाहिए। सोसाइटी का पैसा हमारा पैसा नहीं है, अपन सबका पैसा है। बिल्कुल तो सही है। वो हिसाब से हमको देख के चलना है। आज आप हम लोग को इधर बिठाए हैं तो हमारा फरीजा बनता है कि आपके पैसा जो है हमारे पास अमानत है, उसकी हिफाजत करें। बिल्कुल यही बोलना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। जो पैसा लेने वाला है वो भी एक मेंबर है, बाहर का आदमी नहीं है। वो अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए कभी, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा है इतने वर्षों से, बहरहाल मैं भी मेंबर हूँ, मैं मेंबरों की तरफ से बात कर रहा हूँ। कोई भी मेंबर आपको कभी भी डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। पैसा प्यारा नहीं होता। पैसा कल कमा लेंगे, परसों कमा लेंगे, लेकिन इज्जत चली गई तो कहाँ से लाएंगे। बहरहाल आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो सुने और जो अगर कोशिश करिए। और ये बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंगल पेपर पे मिलता है बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सोसाइटी का मकसद जो है लोन देना नहीं है, इसके साथ आपको जमाबंदी की तरफ भी राग़िब करना है। ये पहले समझिए कि सोसाइटी कायम हुई थी आपको सेविंग्स की आदत डालने के लिए। आप अपनी पैसे सेविंग्स करेंगे और उसी पर बग़ैर कोई मॉर्गेज करे, कुछ और हासिल करे हुए आपको आसानी से लोन देना हमारा काम है। तो मकसद सेविंग्स है, फिर सेविंग्स करके जो है आप अगर ज़रूरत है तो आपको लोन दिया जाता है। और वो भी कुछ क़वानीन के, सोसाइटी के भी कुछ क़वानीन होते हैं, जैसा
अभी सजय साहब ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि सिर्फ सिग्नेचर पे लिया जाता है, इस जहन में रखिए, क्योंकि हम पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पैसा जो है हम बताएं कि आपके पास से वसूल हो गया, ताकि जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ अपने पैसे लगाए और लोन ले लिए, उनका ख्याल हमको ज़्यादा रखना पड़ता है कि उनके पैसे कहीं ऐसा नहीं, वरना कॉन्फिडेंस सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगा। और कोई तो नहीं है। 6th AGM का अख्ताम होता है। तमाम मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे ऑडिटर्स, बैंकर्स और ख़ासकर हमारे ऑफिस के जो स्टाफ हैं जो काफ़ी लगन से काम करते हैं और वक्त पर जो है हमें हर चीज़ मिल जाती है, उन सभी का शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। The meeting has been adjourned. Okay. Wait. देखिए ना, एक मैंने बोला